Okay, so today, very good morning first of all. So today we are going to study a new topic of this chapter, circles. ठीक है? The topic is not very new to you. You already have learned a few things about this topic, circles. Okay, so today we are going to study circles. ठीक है? You must have seen the chapatis at your home. ठीक है? ये chapatis आपने अपने घर में देखी होंगी. The pizza which all of you must love to eat. ठीक है? The pizza you eat, and there are many other things which are round in shape. So the circle you must be the shape of the circle you must be aware of. ठीक है? Circle की shape you all must have seen. ठीक है? In your chapatis, the pizza you eat. And there are many other things which are round in shape. So circle is what? Circle is a polygon. ठीक है? Circle is a closed curve. Sorry, circle is a closed curve which is not a polygon. Okay, circle is what? Circle is a simple closed curve which is not a polygon. Circle, it is a simple closed curve which is not a polygon. जो angles और triangles में हमने पढ़े थे वो और सारे क्या थे? Polygon थे. But circle is that curve which is not a polygon. Okay? Polygon क्यों नहीं है और ये कैसे curve है? We will study now. The statement of the circle is written here that it is a simple closed curve. Simple curve हमने already पढ़ा है कि जो curve एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, they are called as simple curve. तो circle, so first of all let me draw the circle first for you. This is the circle. ठीक है? So clearly you can see the curve has not crossed itself at any point. तो circle का जो curve है, it has not crossed itself at any point. किसी भी point पे ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे. Also this figure is closed. इस figure में you cannot see any opening. इस figure में कोई opening नहीं है. सारी तरफ से ये circle closed है. End points इसके सारे, जैसे हमने circle यहाँ से बनाना शुरू किया, तो this is the starting point. ऐसे बना कंप्लीट करके हम जब हम वापस इसी पॉइंट पे आ गए, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था हम वहीं पे आ गए. जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमारे लिए एंड पॉइंट भी हो गया. तो वी कैन से दैट दिस कर्व इज क्लोज्ड. सर्कल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व व्हिच इज नॉट अ पॉलीगन. व्हाई इट इज नॉट अ पॉलीगन? क्योंकि जब हम पॉलीगन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द पॉलीगन, हमने पॉलीगन में पढ़ा था कि पॉलीगन इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. पॉलीगन इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. इट इज मेड अप ऑफ लाइन segments. ठीक है? Line segments क्या होते हैं? That we have also studied before. Line segment, this is what a line segment, जिसके एक starting point हो, ending point हो. But circle क्या है? Circle में कोई आपको lines नहीं दिखेंगी, एक simple एक curve दिखेगा जिसमें कोई opening नहीं होगी. तो circle क्या हो गया? एक simple closed curve है which is not a polygon. So the definition of the circle is a simple closed curve which is not a polygon. ठीक है? Simple closed curve we have already understood. And why it is not polygon? Because polygon is made up of line segments and there are no line segments in circle. This is the definition. I hope must be quite clear to you. There are different parts of the circle which will study. जैसे हमने quadrilaterals और triangles में diagonals, adjacent sides, adjacent angles पढ़े थे, वैसे ही हम लोग circles में radius क्या होता है, diameter क्या होता है, what is the circumference, what are the segments, what are the arc, ये सारे points को पढ़ेंगे. तो these are all what? These are the parts of circle. Now we are going to study the parts of circle. Okay, so these are what? These are the part of the circle which we are going to study right now. Okay, now we are going to study the part of this circle. For that, let us take an example कि आप अपने free hand से, ठीक है, without just using your hand and pencil आप एक circle बनाओ. ठीक है? देखो ये मुझसे टेढ़ा बन गया, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये भी exactly गोल नहीं दिखाई दे रहा. But
इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर मैं अपना जो हाथ है उसको यहाँ पे एक एंड पॉइंट पे फिक्स कर लूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने अपने थंब को इस पे यहाँ एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया, फिर उसको मैं फिक्स करके उसकी हेल्प से यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तब आप देखोगे कि ये जो सर्कल है जिसमें मैंने सेंटर को फिक्स करके उसके अराउंड ड्रॉ किया है वो इट इज लुकिंग मोर एक्यूरेट, मोर करेक्ट देन दीज टू, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ फ्री हैंड ड्रॉ किया था, हमने कोई सेंटर वेंटर फिक्स नहीं किया था, बट जब हमने एक सेंटर को फिक्स करके एक पॉइंट को फिक्स करके एक सर्कल ड्रॉ किया तो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस सर्कल हैज इज मेड मोर एक्यूरेट देन दीज टू, ठीक है। तो यही से पॉइंट का कंसेप्ट आता है, द पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसी को आप फोकस करके पूरा सर्कल को ड्रॉ करते हो, ठीक है। सो हियर आई हैव अ रेडीमेड सर्कल व्हिच आई एम गोइंग टू ड्रॉ। So this is the circle, okay. तो दिस इज द सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, दिस विल बी दी, जस्ट अ मिनट, so this will be the center of the circle, ये वाला पॉइंट, okay. Let me draw it again. Okay, leave it. So this I have drawn a circle. Now I am going to mark its center, ठीक है। सेंटर जो होगा सर्कल का, it should be in the middle of the circle, क्योंकि उसी को हम लोग फोकस मान के we will draw a circle. So this I have drawn a circle, and जो ये पॉइंट आपको बीच में दिख रहा है, this point is called as, let us name this point as O. This point O is called as the center of the circle, ठीक है। तो सर्कल पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज हम क्या ड्रॉ करते हैं, we draw the center of the circle. So this is what, this is the center of the circle, center, ठीक है। इस सेंटर से जो भी सर्कल के सारे पॉइंट्स आप इस सेंटर को फोकस मान के जितने भी लाइंस को आप सर्कल की बाउंड्री पे खींचोगे, दैट ऑल विल बी इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैंने इसमें ये सारे लाइंस लिए, ये यू कैन सी दैट ऑल दीज लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। आप ये देखोगे कि सेंटर को फोकस सेंटर पे रख के सर्कल की बाउंड्री पे हम जितने भी पॉइंट्स को मार्क करेंगे वो सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होंगे। इक्वी डिस्टेंस मतलब एक ही डिस्टेंस पे होंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। तो O इज द सेंटर, ऑल सेंटर से all points on the circle are equidistant, all points on the circle from the center are equidistant, from the center are equidistant, ठीक है। ये वर्ड आपके लिए नया है, equidistant मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। कैसे, अगर मैंने सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट लिया ये, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इट विल आल्सो बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसी को हम लोग इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। जो वर्ड इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। तो सेंटर से आप सर्कल की बाउंड्री क्या है, जो रेड वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे आप जो भी पॉइंट्स ड्रॉ करोगे दे ऑल विल बी इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ से किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो बाउंड्री पे, उसका जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज 5 सेंटीमीटर होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो दिस दैट पॉइंट जहाँ से सारे जो भी पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ किए जाए वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। Now we are going to study about radius.
The second most important part of the circle is radius. ठीक है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा, रेडियस. रेडियस क्या होगा, हमने सेंटर पढ़ा. ठीक है, सेंटर से जो भी आप पॉइंट सर्कमफ्रेंस में डालोगे इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं. जो आप ये 5 सेंटीमीटर देख लो, these are what, these are called the radius of the circle. So the distance between the center of the circle to the boundary is called as the radius of the circle. ठीक है, it is the line segment that connect the center of the circle to any other point on the circle. ठीक है, for example, let us take the circle this. अगर हमने ये सर्कल लिया है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर. तो रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है सेंटर से लेकर जो ये बाउंड्री का डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस. सेंटर से लेकर ये बाउंड्री का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. हमने पहले जब सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ये सारा डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होगा. अगर ये ओसी 5 सेंटीमीटर का है तो ओए भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ओबी भी 5 सेंटीमीटर का होगा. ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे. जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे या बाउंड्री आप कह सकते हो, फिर जो डिस्टेंस जाता है वो हमेशा सेम होता है. तो यही ओए, ओसी और ओबी, ओए, ओसी, ओबी, इसका डिस्टेंस ऑलवेज सेम है. ठीक है, 5 सेंटीमीटर है. तो इसी ओए, ओसी और ओबी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रेडियस कहते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड as what, this is called as the radius of the circle. The distance from the center to the boundary is called as the radius of the circle. Center से boundary के बीच का distance is called as radius of the circle. ठीक है, OA is the radius, OB is the radius, OC is the radius. उसी तरह से आप अगर यहाँ पे जितने भी लाइन खींचोगे सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे, they all will be the radius of the circle. Also उनकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा एक जैसी होती है. ऐसा नहीं है कि OA अगर 5 सेंटीमीटर है तो OB 6 सेंटीमीटर हो गया, OC 7 सेंटीमीटर होगा, ऐसा नहीं होगा. मैंने इक्वी डिस्टेंस आपको वर्ड बताया था, उसका यही मतलब है कि जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का वो हमेशा सेम होगा. ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है. Now moving on to the another part of the circle, we are going to study now the diameter. Diameter बेटा सर्कल जब रेडियस होता है उसका डबल लेंथ होती है. ठीक है, अब जब आप रेडियस को, now we are going to study diameter. रेडियस का डबल होता है डायमीटर. ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट था, ये OA हमारा था रेडियस. ठीक है, इतना हमने पढ़ा था अभी तक कि O is the center and OA is the what, the radius of the circle. O is the center and OA is the radius. अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का जस्ट डबल. आप जितना इस तरफ गए हो उतना इस तरफ आ जाओ, इसको पॉइंट बी नाम दे दो. ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा, ये जो आप AB लाइन देख रहे हो इट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. तो AB जो है यहाँ पे इज डायमीटर है. ठीक है, आप अगर सिर्फ AB को सर्कल से थोड़े टाइम के लिए हम बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, A को यहाँ ले लिया, B को यहाँ ले लिया, तो ये AB क्या दिखाई दे रहा है, AB एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है. ठीक है, AB को मैंने क्या किया, सर्कल से भी बाहर निकाल दिया. तो AB क्या है, AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट A स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट B एंडिंग पॉइंट है. इसमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं हमको, A is the starting point and B is the ending point and it is a line segment. तो diameter की definition हम कह सकते हैं, a diameter is a line segment which passes through the center of the circle. ये जो AB है, ये लाइन सेगमेंट कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर के सर्कल के सेंटर से. तो diameter is a line segment which passes through the center of the circle. सर्कल के सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास होगा, ठीक है, वो diameter होगा. आप यहाँ से भी एक लाइन सेगमेंट निकाल सकते हो, इसको CD नाम दे दो. ठीक है, यहाँ से एक जो डायमीटर निकालोगे उसको CD नाम दे दो. तो CD भी क्या हो जाएगा, एक डायमीटर हो गया. सर्कल से सेंटर से पास होती एक लाइन सेगमेंट हमने और बना ली, इसका नाम क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा. ठीक है,
तो ये सारे जो लाइन सेगमेंट है which are passing through the center of the circle, these are called as what? These are called the diameters of the circle. AB is a diameter, PQ is a diameter, CD is a diameter. ठीक है, आप बहुत सारे diameters सॉरी लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से क्रॉस करा सकते हो. They all are what? They are called the diameters of the circle. Why? Because these line segments are passing through the center of the circle. And second important thing about diameter is that they should touch the boundaries. ठीक है, ये यहाँ जो सर्कल की बाउंड्री है क्या है, ये वाली पार्ट है सर्कल की बाउंड्री. ठीक है, तो जो डायमीटर होता है सबसे पहली जो कंडीशन उसको फुलफिल करनी होती है, इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट शुड टच द बाउंड्री. अगर आपने ये एक सर्कल लिया, फॉर एग्जांपल ये उसका सेंटर है, ये एक पॉइंट बनाया, तो क्या ये डायमीटर होगा? नो. सेंटर से तो ये पास हो रहा है पर ये बाउंड्री पॉइंट्स को टच नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये एक सेंटर मतलब डायमीटर नहीं होगा. डायमीटर होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि आपको सेंटर से भी पास करना है और सेंटर से भी पास करना और सर्कल की बाउंड्री को भी टच करना है. तो when any line segment satisfy these two points, then that line segment is called as the diameter. ठीक है, डिफरेंस आप समझ लो. दो केसेस लेते हैं, एक ये हमने सर्कल लिया, एक हमने ये सर्कल लिया. ठीक है, ये सेंटर हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट एज सेंटर O. तो हमने क्या पढ़ा डायमीटर की डेफिनेशन में? एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए. तो लाइन सेगमेंट हमने ये ड्रॉ कर दी, सेंटर से पास हो रही. ठीक है, फिर हमने कहा कि वो सर्कल की बाउंड्री को टच करना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों फिगर 1 में और फिगर 2 में हमने जो अलग अलग कंडीशन कही वो सेटिस्फाई हो रही है क्या? चलो लेट्स सी. हमने पढ़ा था डायमीटर शुड पास थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास कर रहा है. ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि इट शुड टच द बाउंड्री पॉइंट्स. तो ये बाउंड्री पॉइंट को टच कर रहा है, बट ये दोनों ही डायमीटर ऑफ द सर्कल नहीं है. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट केस में हमने सर्कल लिया है उसमें जो लाइन सेगमेंट हमने लिया, फॉर एग्जांपल AB लिया है, ये लाइन सेगमेंट AB सेंटर से तो पास कर रहा है पर ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है, तो ये डायमीटर नहीं होगा. ठीक है, दूसरे केस में हमने CD लिया है, ये CD जो है सर्कल के बाउंड्री पॉइंट्स को तो टच कर रहा है बट ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो ये भी डायमीटर नहीं होगा. तो इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम हियर ओनली वी कैन कंक्लूड दैट कि जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है इट शुड बी पास थ्रू द सेंटर एंड इट शुड टच द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा डायमीटर होगा. दोनों में से कोई एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दैट विल नॉट बी द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? इट पासेस थ्रू द सेंटर, it should pass through the center and touch the boundary points. It should pass through the center and it should touch the boundary points. पहली कंडीशन ये है and दूसरी कंडीशन है it should touch the boundary of the circle. ये दोनों कंडीशन को a diameter should satisfy, else if that line segment is not satisfying these two conditions then that line segment will not be termed as a diameter of that circle. Touch the boundary of the circle. ठीक है, उसके बाद next we are going to study about chord. ठीक है, now we are going to study about the chord of the circle. The fourth part is the chord of the circle. ठीक है, ये एक सर्कल हो गया. कॉर्ड क्या होती है? ये ये पॉइंट हमने ले लिया सेंटर का. तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के बाउंड्री को टच करते हैं. सिंपल डेफिनेशन में कॉर्ड की, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच टच द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई. ठीक है, किसी भी लाइन फॉर एनी लाइन सेगमेंट टू बी अ कॉर्ड इट शुड टच द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. सिर्फ उसके एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि सर्कल की जो बाउंड्री है उसको टच करना है, उसके अलावा और कोई चीज दूसरी कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, वी डोंट हैव एनी अदर कंडीशन. तो अगर ये सेंटर O है सर्कल का तो ये AB एक कॉर्ड हो गई, CD एक कॉर्ड हो गई, PQ एक कॉर्ड हो गई. तो ये सारी लाइन सेगमेंट जो आपको दिख रही है AB CD PQ, ये सारी क्या है? these are what? these are the chords of the circle. ठीक है, इसमें और कोई कंडीशन नहीं है.
ठीक है, कंडीशन बस ये है कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है इट शुड बी ऑन दी बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एज यू कैन सी ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट भी सर्कल पे है एंड पॉइंट बी इज आल्सो ऑन दी center of boundary of the circle. Here point C is also on the boundary, point D is also on the boundary. तो chord की सिर्फ एक यही कंडीशन है that उसके एंड पॉइंट्स है it should touch the boundary of the circle, ठीक है। Now arc, ठीक है, पहले let us see about this segment. Segment, the fifth part is segment. Segment word का मतलब I have already told you that segment means टुकड़ा। What is not coming? Now is it coming? Ma'am. Yes, ma'am. Just mute yourself now. ठीक है, segment Yes, क्या? ma'am. Okay. Segment of the circle क्या है? This is the circle, ठीक है? This is the center. ये and this. These are what? These are the two radius of the circle. OA is a radius and OB is a radius. These are what? These are the radius of the circle, ठीक है? ये दो radius हमने circle के बना लिए। इन दोनों radius के बीच का जो enclosed area है वो है this, ठीक है? This is the enclosed area between these two circles. As you can see, I have highlighted the portion also, shaded the portion. This is what? This is the enclosed area between these two circles. तो अगर हम इसको O मान लें, let us name it. सबसे पहले सेंटर को नेम करना है, तो दिस इज आवर सेंटर O. अगर हमने दो रेडियस ड्रॉ किए हैं, OA is a radius, OB is a radius, ठीक है? These are what? OA and OB here are the radius of the circle. तो the area enclosed between these two radius, OA और OB के बीच में जो area enclosed है, that is what? That is called the segment. Let us study the sector first, ठीक है? सेक्टर पढ़ना है पहले। जो दो रेडियस OA और OB के बीच का जो एरिया है that is called what? That is called as the sector, ठीक है? आपने ऐसे घरों के एड्रेस you must have heard that sector B में यमुना सेक्टर में उसका घर है या गंगा सेक्टर में उसका घर है। तो सेक्टर वर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है एक एरिया, ठीक है? एक एरिया, एक डेफिनेट एरिया जिसका कुछ स्टार्टिंग हो और कुछ एंडिंग हो। तो सेक्टर का मतलब सिंपली होता है एरिया। कौन सा एरिया? जो इन दोनों रेडियस के बीच में इंक्लोज है। क्या हम इस पार्ट को सेक्टर बोलेंगे? नो। व्हाई? क्योंकि ये जो रेडियस हमने OA लिया है, OB लिया है, उसके बीच में इंक्लोज नहीं है, इट इज आउटसाइड द रेडियस। तो जो दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है दैट एरिया इज कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। आप इसको लिखोगे कैसे? सेक्टर OAB। यू विल राइट इट एज सेक्टर OAB, ठीक है? तो हम इसमें से ये समझेंगे कि AOB या OAB कुछ भी लिख सकते हो। AOB, जब आप AOB लिखोगे तो हम समझ जाएंगे कि OB और OA दो रेडियस हैं और उनके बीच के सेक्टर, उनके बीच के एरिया की बात की जा रही है। तो सेक्टर इज व्हाट? सेक्टर इज एन एरिया enclosed between two radius. Okay, now we are going to study this segment. Now we are going to study segment. मैम बहुत सांस आने लगा। Just a minute. मैम ये क्यों? ठीक है? Now we are going to study about the segment of the circle. Chord you have already understood. Chord का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है? ये एक सर्कल हो गया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, दिस इज द chord, ठीक है? Now just a minute. ठीक है, ये दो पार्ट्स हमें क्लियरली सर्कल के दिखाई दे रहे हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है? जब हमने एक कॉर्ड को ड्रॉ किया, व्हेन वी हैव ड्रॉन अ कॉर्ड AB
क्या दिखाई दे रहा है? AB इज व्हाट? AB इज कॉर्ड है, ठीक है। AB क्या है? सिंपल एक कॉर्ड है। AB is chord. हमने chord के बारे में क्या पढ़ा है? Chord is a line segment whose end points lie on the boundary of the circle. Chord AB is simple a line segment जिसके end point जो होते हैं lies on the boundary of the circle. जब हमने एक circle में when we have drawn a chord inside a circle, we have clearly seen that the chord has divided the circle into two parts. ठीक है? एक yellow part और एक blue part. As you can all see, the chord has divided the circle into two parts. जो येलो वाला पार्ट है इट इज लुकिंग मेजर, ठीक है, ये ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हम इसको मेजर बोल सकते हैं क्योंकि इसका शेयर जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इट इज माइनर, ठीक है, उसका एरिया जो है कम है। क्लियरली यू कैन सी दैट द येलो पार्ट है, द एरिया ऑफ द येलो पार्ट इज लार्ज, ठीक है, इसका येलो पार्ट का एरिया ज्यादा है और जो छोटा पार्ट ब्लू वाला दिख रहा है उसका एरिया कम है। ये एरिया हमें कैसे मिला? जब हमने एक सर्कल में एक कॉर्ड को ड्रॉ किया, व्हेन वी हैव ड्रॉन अ कॉर्ड इनसाइड दिस सर्कल, द कॉर्ड इज AB, द कॉर्ड हैज डिवाइडेड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो जो छोटा यही डिवीजन है, द डिवीजन ऑफ दिस सर्कल बाय द कॉर्ड, ठीक है, बाय द कॉर्ड AB इज नोन एज दिस सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। व्हाई? बिकॉज़ द एरिया in which the circle has divided is less than the upper area, ठीक है, जो ये blue part वाला area it is less, this is called the minor segment of the circle। और जो ज्यादा पोर्शन दिखाई दे रहा है it is called as the major segment। तो जो chord होती है it divides the circle into two parts, major and minor segment, ठीक है। दिस इज जो ये AB है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट मींस हमने पहले भी पढ़ा है टुकड़ा, तो ये दो टुकड़ों में एक कॉर्ड ने सर्कल को डिवाइड कर दिया, तो जो ज्यादा बड़ा वाला टुकड़ा है दैट इज कॉल्ड एज द मेजर सेगमेंट और जो छोटा वाला टुकड़ा दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, so these were the parts of this circle which we have studied, ठीक है। we have studied about the center of the circle, the radius, the diameter, the segment, the chord and the sector, and one more thing is left, the arc, ठीक है, arc अभी रह गई है। The last part is arc, ठीक है। जब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक सेंटर हो गया उसमें, दिस इज द chord, ये आपको यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द कर्व, ठीक है। ये गोल पार्ट आपको मुड़ा हुआ थोड़ा सा कर्व दिख रहा होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज व्हाट? दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। और हम इसको लिखते कैसे हैं? आप AB लिखोगे, उसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ द सर्कल। AB इज द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। आर्क का साइन आप कैसे बनाओगे? एक कर्व जो आपको यहाँ दिख रहा है सर्कल में, सिंपली AB लिख के उसके ऊपर में ड्रॉ करोगे, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आर्क ऑफ द circle। So we have finished all the parts of the circle. One more thing is left, semicircle। Let this be the circle, ठीक है। अगर हम ये सर्कल लें, इसका this is the center of the circle, let us take the line passing through the center of the circle। So this line is what? This line is the diameter of the circle। Let us name it, point O is here, this is point O, point A, point B, ठीक है। जो ये लाइन डायमीटर है, जो डायमीटर ऑलवेज डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब हमने कॉर्ड को पढ़ा था तो कॉर्ड ने इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड नहीं किया था, एक मेजर पार्ट मिला था, एक माइनर पार्ट मिला था, बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो इस जो ऊपर अपर हाफ वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द सेमी सर्कल। सेमी मींस आधा, ठीक है। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को व्हेन वी विल स्टडी दीस टू पार्ट्स अकेले अकेले, तो वी विल हम इसको सर्कल नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट व्हाट? वी विल कॉल इट एज अ सेमी सर्कल। व्हाई? बिकॉज़ वी आर स्टडीइंग द हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल। सेमी मींस हाफ। तो अगर जो ये डायमीटर है इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल्स मीन जो एरिया यहाँ पे होगा वो एरिया यहाँ पे भी होगा, तो जो डायमीटर है डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स।
and those equal parts are called as what? They are called as the semicircle. ठीक है, they are called as what? They are called as semicircle. Semi means half and circle means circle. तो circle का आधा is semicircle. ठीक है. Now we are going to solve the exercise 4.6 very quickly. All points जो भी हमने पढ़े वो सारे exercise. Beta after the session, okay? Now we are going to solve the exercise very quickly. Then I will take your question. None down there. Beta, wait. This is exercise 4.6 and in the first part we have to identify the following things. ठीक है? So let us take the first question. We have to एक फिगर बना के हमें उस फॉलोइंग पॉइंट्स को मार्क करना है. ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक सेंटर को मार्क करना है. तो ये फिगर हो गया एंड सेंटर इज O. The center of the circle is O. Point O is the center of the circle. जो फिगर आपको क्वेश्चन बुक में आपकी दिया भी हुआ है, तो आई एम ड्राइंग दैट फिगर ओनली. E और D is the figure. This is point A, this is point O and this is point C. Point P is here and this is OB. ये सेक्टर है. ठीक है? So what is the center of the circle? Clearly you can see point O is the center of the. There is Q. There is Q also. Okay. ठीक है, point O is the center of the circle. We have to, in the second part, we have to draw name 3 radii. The plural of the word radius is radii. ठीक है, तो कितने रेडियस दिख रहे हैं? OA is a radius, OB is a radius and OC is a radius. ठीक है. The third part में हमें एक diameter दिखना. Diameter you can see that this line is passing through the center and it is touching the boundary points. So AC is diameter. AC is what? AC is the diameter of the circle. Okay. Now a chord. You can see that these two points are joining the boundary of the circle. ठीक है, तो ED क्या होगी यहाँ पे? ED is chord. Fifth part of the question. Fifth part में क्या करना है? We have to draw two interior points. दो point जो circle के interior है. So clearly we can see that point P is inside the circle and point O is also inside the circle. So point O और point P are interior points. ठीक है? अंदर जो है circle के. They are what? They are the interior points. Okay? Now. The fifth part of the question, sorry, the sixth part. The sixth part में हमें a point in the exterior circle के exterior we can see that point Q is lying on the exterior part of the circle. So point Q is exterior. Point Q is exterior. Point to the circle. Point Q is exterior. Exterior मतलब जो point region के बाहर हो. All right. Now. The next is a sector. हमने सेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था? The area enclosed between two radius. OA एक radius है, OB is another radius, and the area enclosed between this is this sector. So what is sector? B is sector. आप इसको क्लियर करिए. AOB is sector. ठीक है, लास्ट एंड 8th पॉइंट इज सेगमेंट. ठीक है, सेगमेंट आपको दिख रहा होगा. ये ईडी जो कॉर्ड है इसने इस पार्ट ऑफ द सर्कल को मेजर बनाया है और ये वाला जो पार्ट है दैट इज व्हाट? दैट इज द सेगमेंट. तो आप ईडी को एक सेगमेंट कह सकते हैं. जस्ट अ मिनट. ठीक है, ED जो शेडेड पोर्शन है इज व्हाट? इट इज द सेगमेंट. ED इज सेगमेंट. आप उसके ऑपोजिट मेजर वाले पार्ट को भी सेगमेंट बोल सकते हो, बट
थैंक यू।